بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ ہندوستان وہ گلدستہ ہے جس میں ہر پھول موجود ہے اور اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا پردیش کے صدر و سابق MLC مولانا حافظ پیر شبیر احمد نے یوم جمہوریہ کے موقع پر تمام شہریوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک سیکولر ملک ہے اور انشاءاللہ سیکولر ملک ہی رہے گا۔ ہمارا ملک قومی یکجہتی، سالمیت، بھائی چارگی، امن و امان، گنگا جمنی تہذیب کی زندہ مثال رکھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان کی تاریخ کے اوراق مسلمانوں کی قربانیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ 350 سالہ قربانیوں کے بعد اس ملک کو جمہوری بنایا گیا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئرمین جسٹس چندریا نے 72ویں یوم جمہوریہ تقریب کے موقع پر نامپلی میں واقع تلنگانہ اسٹیٹ ہیومن رائٹس کمیشن کے دفتر میں قومی پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر ریٹائرڈ جسٹس اسماعیل اور متعلقہ عملے کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ ఈ రోజు చాలా శుభదినం। భారతదేశ చరిత్రలో రెండు ప్రధానమైనటువంటి మైలురాళ్ళు, ఒకటి స్వాతంత్ర దినోత్సవం, రెండవది గణతంత్ర దినోత్సవం। వాళ్ళ భారతదేశం 72వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటున్నటువంటి సందర్భం। ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ఇక్కడ సమావేశమైనటువంటి మా సోదరుడు శ్రీ KN ఆనందరావు గారు, గౌరవ సభ్యుడు తెలంగాణ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్, అలాగే సోదరుడు ఇర్ఫాన్ జీ, గౌరవ సభ్యులు తెలంగాణ రాష్ట్ర హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్, అలాగే సోదరుడు ఇస్మాయిల్ గారు, పూర్వపు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ సభ్యులు, మా ఆఫీసర్స్, సబార్డినేట్స్, వచ్చినటువంటి ప్రజలు, పత్రికా విలేకరులు అందరికీ జాతీయ 72వ गणतंत्र दिनोत्सव शुभाकांक्षलु తెలియజేస్తున్నాను। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस वाक़े टैंकबंड खैरताबाद में कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार ने रिपब्लिक डे के मौके पर नेशनल फ्लैग की परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मेयर GHMC बोंतो राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट विश्वजीत के अलावा दीगर मौजूद थे। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर बशीरबाग में चीफ अकाउंट्स ऑफिसर नरेंद्र सिंह ने 72वें यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दस्तूर हिंद के नफाज के बाद मुल्क भर में रिपब्लिक डे तकारीब का इनेकाद अमल में लाया जाता है। उन्होंने तमाम शहरियों को मुल्क में हमांगी, कौमी सालमियत, कौम परस्ती, भाईचारगी के जज्बे के साथ आइन पर अमलावरी के जज्बे को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। इस मौके पर मुताल्लिक़ा अमला व दीगर भी मौजूद थे। याकुतपुरा इमलीबन इलाके में यौम जमहूरिया तकरीब का इनेकाद इत्तेहाद मिल्लत व मुकामी अवाम की जानिब से अमल में लाया गया। इस मौके पर कौमी परचम लहराया गया। इस दौरान नीट के इम्तहान में नुमाया कामयाबी हासिल करने और शादान मेडिकल कॉलेज में मुफ्त दाखिला लेने वाली होनहार तलबा मोहम्मदी फ़ातिमा और उनके वालिद शेख मकबूल की गुलपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की गई। आगे बढ़े तो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फ्रीडम है, तो उस राइट का सही तरीके से अपन एजुकेशन को हासिल करने के लिए हर किसी को मौका दिएगा। मैं क्या हर एक बच्ची अपनी उम्मत में आगे बढ़ के सिर्फ उम्मत तेलंगाना हर जगह अपना नाम रोशन करेंगे। जगतियाल के पुराने किले में यौम जमहूरिया तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में ज़िला कलेक्टर G रवि ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर कलेक्टर ने पुलिस से सलामी ली और ज़िले की तरक्की के मुतालिक रोशनी डाली। उन्होंने सभी को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। AICC मेंबर आदिलाबाद हल्के इंचार्ज G सुजाता और ज़िला सदर कांग्रेस साजिद खान ने साबिक़ वज़ीर रामचंद्र रेड्डी की रिहाइशगाह पर पार्टी कायदीन के हमरा तिरंगा लहराया और आवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। बाद-ए-अज़ां किसान चौक से किसानों की हिमायत में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। इस मौके पर साजिद खान और G सुजाता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली में किसान
60 دن سے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ قوانین کو کالعدم قرار دیا جائے اور کسانوں کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اس موقع پر مارکیٹ کمیٹی کے سابق چیئرمین یاسم نارسنگی راؤ، الوری سنجیو ریڈی، دیہی ZPTC کنڈا گنگادھر اور دیگر موجود تھے۔ ضلع وقار آباد کے تانڈور میں یوم جمہوریہ جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر تانڈور تحصیل دفتر میں تحصیلدار چنپالا نائیڈو نے قومی پرچم لہرایا۔ اس تقریب میں MPP انیتا، ZPTC منجولا، MPDO سدرشن ریڈی کے علاوہ دیگر متعلقہ عہدیدار و عملہ اور TRS قائدین موجود تھے۔ ضلع کاماریڈی بانسواڑہ میں یوم جمہوریہ کی تقریبات منعقد کی گئی۔ DCCB چیئرمین پوچارام بھاسکر ریڈی نے MLA کیمپ آفس میں قومی پرچم لہرایا۔ اس کے علاوہ مختلف سرکاری و سیاسی دفاتر میں بھی یوم جمہوریہ کی تقریبات منعقد کی گئی۔ پولیس اسٹیشن میں DSP جے پال ریڈی، TRS پارٹی آفس میں موہن نائک، مہاتما گاندھی مجسمے کے پاس چیئرمین جے گنگادھر نے قومی پرچم لہرایا اور لوگوں کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد دی۔ کریم نگر میں واقع مجلس اتحاد المسلمین کے صدر دفتر دارالسلام میں یوم جمہوریہ کے موقع پر قومی پرچم لہرایا گیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب میں راجیو چوک اسلامی مسجد میں گزشتہ 50 سالوں سے امام کے فرائض انجام دے رہے حافظ شفیع الدین اعجاز کو گولڈن جوبلی امام ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر مجلس قائدین کے علاوہ شہر کی معزز ہستیاں موجود تھیں۔ بودھن فروٹ مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے منعقد کی گئی یوم جمہوریہ تقریب میں نائب صدر نشین بلدیہ احتشام الدین سہیل نے پرچم کشائی انجام دی، جبکہ مجلس بلدیہ بودھن میں صدر نشین بلدیہ پدما شرت ریڈی نے پرچم کشائی انجام دی۔ اسی طرح جمعیت علماء ہند کی جانب سے اپنے دفتر واقع 7 پل پر صدر تنظیم مفتی جابر اشاعتی نے ترنگا لہرایا اور خطاب کرتے ہوئے ملک کے دستور کے نفاذ کے دن کے متعلق روشنی ڈالی۔ اس موقع پر کئی صحافیوں کی بھی عمدہ کارکردگی پر سراہنا و گلپوشی کی گئی۔ دوسری جانب بودھن ایچر ڈرائیورز ایسوسی ایشن کی جدید تعمیر کمیٹی نے بھی امبیدکر چورستے پر ایک تقریب منعقد کی، جس میں RTO بودھن راجو نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے پرچم کشائی انجام دی۔ భారతదేశంలో సంవత్సరానికి దాదాపు 150,000 మంది ఈ యాక్సిడెంట్లలో మరణిస్తున్నారు. అయితే ఎంతోమంది ప్రాణ నష్టం జరుగుతుంది, ఎంతోమంది ఇంజూర్ అవుతున్నారు. ఈ ప్రమాద గంటికలు ప్రోగిస్తున్న ఈ యాక్సిడెంట్లను తగ్గించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండు కలిపి రోడ్డు భద్రతా వారోత్సవం జరుపుతున్నాం. ఎవ్రీ ఇయర్ రోడ్డు భద్రత 1 వీకే జరిపేవాళ్ళం. ఈ సంవత్సరం 1 మంత్ జరుపుతున్నాం. జనవరి 18 నుంచి 17 వరకు జరుపుతున్నాం. అయితే యాక్సిడెంట్లో చనిపోయే వాటిని గమనించినట్లయితే 85% ఆఫ్ ద యాక్సిడెంట్స్ అన్ని మన తప్పిదాలతో జరుగుతున్నాయి, మానవ తప్పిదాలతో జరుగుతున్నాయి. ఆ తప్పిదాలు ఏంటంటే మనకు తెలుసు, అతివేగం ప్రమాదకరం, స్పీడ్ థ్రిల్స్ బట్ కిల్స్, వాళ్ళందరికీ తెలుసు. దాంతో 71% ఆఫ్ ద యాక్సిడెంట్ స్పీడ్తో జరుగుతున్నాయి. అదేవిధంగా రాంగ్ టైంలో ఓవర్టేక్ చేయకండి దయచేసి, అదేవిధంగా రాంగ్ रूट ड्राइव చేయకండి, తాగి వాహనాలు నడపకండి। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके कुर्मागुड़ा के एक रिहायशी ने यौम जमहूरिया के मौके पर अपनी मोटरसाइकिल को अनोखे अंदाज में सजाते हुए मुल्क की आवाम तक भाईचारगी, अमन, गंगा जमनी तहजीब के जज्बे को फ़रोग़ देने की अपील की। इस शख्स ने अपनी गाड़ी पर मुजाहिद आज़ादी की तस्वीर लगाकर ये पैगाम पहुँचाने की कोशिश की। गुज़िश्ता दिनों तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी और डायरेक्टर पर दर्स व तदरीस से वाबस्ता किसी खातून की जानिब से आयद करदा इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए डायरेक्टर और सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस ने सख्त अल्फाज में तरदीद की। उन्होंने इस सिलसिले में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए तफसीलात बताई। उन्होंने मीडिया से अपील की कि वो ऐसे मामलात में संजीदगी से काम लें। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के दीगर अमले ने भी इस ज़िमन में वजाहत पेश करते हुए तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। शहर हैदराबाद में नामालूम अफराद ने हिस्ट्री शीटर काला फेरोज़ का सनत नगर की RK सोसाइटी में कत्ल कर दिया। पुरानी मखासमत कत्ल की वजह समझी जा रही है। इन नामालूम हमलावरों ने चाकू से फेरोज़ पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया और उसे फ़ौरी एक खानगी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ वो ज़ख्मों से जांबर ना हो सका। ये वाक़या पीर की शब पेश आया। फेरोज़ बोरावंडा इलाके का राउडी शीटर बताया जाता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। हैदराबाद टास्क फोर्स और रच्चाकुंडा पुलिस ने मोस्ट वांटेड सीरियल किलर मैना रामुलू को गिरफ्तार कर लिया। सिटी पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार ने एक प्रेस मीट करते हुए मुलजिम को मीडिया के रूबरू पेश किया और तफसील बताई। उन्होंने कहा कि मुलजिम मुल्क पुलिस स्टेशन और घटकेसर पुलिस स्टेशन में कत्ल के 2 अलग अलग जुर्म में मतलूब था। इसे 21 मरतबा गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 16 मामलात मर्डर फॉर गेन, 4 मामलात
प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स और एक मामला पुलिस कस्टडी से फरार होने का शामिल है। थैलेसीमिया पेशेंट के लिए 26 जनवरी रिपब्लिक डे के मौके पर यूथ लीडर मुकरम अली सिद्दीकी की जानिब से शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया। इस मौके पर MLC MS प्रभाकर, तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान के अलावा दीगर मुअज़्ज़ज़ हस्तियों ने शिरकत करते हुए थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किए जाने की सराहना की। बताया जाता है कि इस कैंप के ज़रिए हासिल किया जाने वाला ब्लड थैलेसीमिया पेशेंट को फ्री में दिया जाएगा। इस मौके पर बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत करते हुए अपना ब्लड डोनेट किया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना की गवर्नर ने यौम जमहूरिया के मौके पर लहराया तिरंगा, कहा तेलंगाना दीगर रियासतों के लिए रोल मॉडल और काबिल तक़लीद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR ने प्रगति भवन में लहराया तिरंगा, अवाम को दी यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और दीगर अरकान असेंबली ने लहराया कौमी परचम, अवाम को दी 72वीं यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने किया सेक्रेटेरिएट के मुकाम का दौरा, नए सेक्रेटेरिएट के तामीरी कामों का लिया जायजा, ओहदेदारों को दी जरूरी हिदायत। हिंदुस्तान की तारीख के औराख मुसलमानों की कुर्बानियों से भरे पड़े हैं। सदर जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हाफिज पीर शब्बीर अहमद का बयान। मोस्ट वांटेड सीरियल किलर मैना रामुलू को हैदराबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने प्रेस मीट में बताई तफसीलात। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।